We have to keep the name for the function, and after this function, if it is a function, we have to write the parenthesis pair. Okay, and before this, whenever we define anything in C, its type has to be defined. इसका कोई type होगा, और type होता है primitive data type या derived data type. Derived data type अभी हमने नहीं पढ़े हैं. तो जो फंक्शन आप बनाने वाले हैं, आप उसका नाम रखेंगे और उसका टाइप क्या है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा. जस्ट लाइक इन दिस मेन फंक्शन, द डेटा टाइप ऑफ द मेन फंक्शन इज void. Void means खाली, there is nothing, and here for main function it is saying that the type of main is nothing. Main is of nothing type right now. So if you want to specify nothing as the type, then you will use void. There could be the cases that your variable or function is of nothing type. There is no data type, because we need to write a data type here. So if it is of no data type, then we are writing void. Okay. So if we want to define a variable in our program, then we need to write function name, parenthesis, and then data type. And this data type is termed as return type here. Now we will see that why it is said to be return type here. So this is the prototype of the function. It means whenever you want to define a function, you will write first of all the return type. This return type is some data type. Data types क्या होते हैं? Integer, character, float, और there could be derived data type जैसे array, structure, pointer. ये अभी derived हैं, ये हम कल पढ़ेंगे. तो यहाँ पे हम return type लिखते हैं, which is a type of data type and the function. Okay, I guess you understand the essence of writing a function. Now if you want to add two numbers with the help of any function, if you want, it means मुझे function add का बनाना है और मुझे 10 बार add करना है, 10 बार add करना है, तो we will not writing 10 times adding functionality in main. We will make one function of add and we will call it again and again कि add कर दो, add कर दो, add कर दो. Okay, we will not be writing 10 times यहाँ पर. Okay, so what we can do, we can define a function for add over here, and then we can call it as many times as you want. So we are making a function for add. Now first of all we need to keep the name for the function. Then we have to keep the name कि यूजर को समझ में आए कि ये किस चीज का फंक्शन है. तो हमने यहाँ पे फंक्शन का नाम रखा add. Okay, you can keep it as sum or addition or anything else. It is just a name and it is user's perspective, user's decision that what name he or she wants to give to the function. After that, parenthesis pair. For this parenthesis pair is there, we will discuss. If we need to write a return type over here, that can be any data type. If nothing is there, then void is there. Slowly we will change this, and after that we need to write curly braces pair to give the functionality. What functionality we can give in the sum function? Now this is the function of sum. Okay. Wants to give some functionality in the sum, it means that we must have some or two numbers. So I am writing a program, some state. Okay, scanf statement. Yesterday we did a scanf statement. If you want to take values from the user, you can use scanf function, and then this scanf function parenthesis will be there.
In double quotes, we will be writing the format specifier for the variables we will be using here. So ampersand is important because at the address of A, at the address of B, we want the value. And the format specifier for these variables in the same order is to be written in this scanf. Okay, so this will allow to take two inputs from the user and later on. मैम मैम Yes. मैम Hello. हाँ मैम, हम लोगों ने सब ये किसी भी ऑपरेशन का फंक्शन क्यों बनाया? क्योंकि बिना फंक्शन बनाए भी तो वो काम हो सकता था ना पहले, जो हम पहले कर रहे थे। आप जो प्रोग्राम बना रहे हो उसमें मुझे अभी सम करना है, फिर मुझे अभी सब्ट्रैक्शन करना है, उसके बाद फिर डिवीजन करना है और फिर दोबारा सम करना है, देन अगेन फिर मुझे मॉड्यूलस निकालना है, फिर मुझे फैक्टोरियल निकालना है, फिर दोबारा मुझे सम करना है। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट वी विल बी डूइंग, विल बी राइटिंग ऐड कोड, सब्ट्रैक्ट कोड, डिवीजन कोड, फैक्टोरियल कोड, डिवीजन कोड, एडिशन कोड। तो एडिशन कोड जब ऊपर एक बार लिख दिया था तो हम दोबारा दोबारा क्यों लिखे? इट विल इंक्रीज द साइज ऑफ द प्रोग्राम। सो इफ देयर इज एनी कंसेप्ट कि मैं इस कोड को कहीं पे सिक्योर कर दूं और जब मुझे इसकी जरूरत हो मैं इसे कॉल कर लूं, फॉर दैट थिंग वी विल यूज फंक्शंस। गॉट इट? ओके ओके मैम, Okay, so if 1000 times I need to add, then 1000 times I'll be not writing some code because it's 5-line code. So 5 into 100 will be 500 line. So what we'll be doing, हम इसे एक जगह लिख देंगे 5 लाइन को, और 500 बार बुलाना है तो हम उस पर भी लूप लगा देंगे. Will not be writing 500 times. Only 7 to 8 lines will be achieving our goal. ओके मैम. Okay. Is एक्सक्यूज मी मैम, मैम एक डाउट है मैम, जैसे हम फंक्शन यहाँ पे खुद डिफाइन कर रहे हैं तो उसको मेन से पहले ही डिफाइन करना होता है हमेशा? नहीं, ऐसा नहीं है. I'll be changing this code. Very good question. It is not mandatory. कुछ चीजें हैं, मुझे एक और चीज बतानी होगी इसको नीचे लेके जाने के लिए. That's why I'm defining it here. और मतलब above main. Okay. So I'll proceed to that also. That is very important. So currently what we have done, we have defined a function in which I am writing the code, whatever this function has to do, it will add two variables, and the times you want to call this function, you can call this function. And how to call this function? Simple, write function name, then the pair of parentheses and semicolon. Very simple. जहां पे मेन फंक्शन में आपको इस फंक्शन को कॉल करना है वहां पर आप इसका नाम लिखिए, पेरेंथेसिस का पेयर लिखिए, एंड इट विल बी सिंपली कॉल्ड. ओके, सो लेट मी रन दिस. Alt F9 and Control F9. So enter two numbers, 2 and 3. So the result is 5. Okay, so hope you understood that how can we simply define a function. Okay, so the question was that is it, हाँ मैम एक और क्वेश्चन है कि जैसे ये वॉइड मेन है, अगर हम वॉइड मेन ना इंक्लूड करें, खाली बस जो हमें अपने जो फंक्शंस चाहिए, सम, डिवीजन, खाली वही इंक्लूड करें तो भी एरर दिखाएगा क्या ये बिना वॉइड मेन के? एरर नहीं दिखाएगा, रन हो जाएगा, कंपाइल हो जाएगा, रन नहीं होगा क्योंकि रन के लिए मेन कॉल होता है. रनिंग मतलब कंपाइल हो जाएगा कोड, मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, मशीन कोड में आपका कोड कन्वर्ट हो जाएगा. बट इफ देर इज नो मेन देन योर प्रोग्राम विल नॉट गेट अ कॉल ऑफ प्रिंटिंग दी स्टेटमेंट, या जो फंक्शनैलिटी है वो कोई फंक्शनैलिटी कॉल नहीं हो पाएगी. तो मेन इज टू कॉल दी फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोग्राम. इफ यू आर हैविंग समथिंग लाइक दिस, अगर आप void sum बना के रख दें
कंपाइल कर दोगे, कंपाइल हो जाएगा, मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, बट देयर इज नो वे टू कॉल दिस सम फंक्शन. दैट्स व्हाई वी आर हैविंग मेन फंक्शन इन अवर प्रोग्राम, क्योंकि मेन की कॉल इनसाइड द कंपाइलर है. जैसे हम सम को यहाँ कॉल कर रहे हैं, एक्सप्लिसिटली वी आर राइटिंग सम, तो मेन का ऐसे ही कॉल इनसाइड ऑलरेडी डिफाइंड है. तो जब वो प्रोग्राम चलता है, जैसे हम यहाँ ये देखो, दीज आर 460 लाइन, तो इन 460 लाइंस में से कोई एक लाइन मेन को कॉल कर रही होगी, और फिर उस मेन से आपका सम कॉल हो रहा है, और फिर सम पे आपकी कॉल जा रही है. ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ मेन समझ आया आपको? Okay, hope you got it. Yes, Now, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Someone was asking, is it necessary to write the function above main function? Then answering that it is not necessary. In fact, ये अच्छी हैबिट भी नहीं है कि आप मेन के ऊपर फंक्शन को डिफाइन करें. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो हाउ टू राइट द फंक्शन. ये जो void sum लिखा है, पहले हमें ये समझना होता है. उसके बाद whenever we are writing any function, in the starting of the program we will be defining function declaration. जितने फंक्शंस आपको प्रोग्राम के अंदर चाहिए, ऐसा तो नहीं है सिर्फ आप फंक्शन में सम करोगे. यू कैन डू sum, subtract, factorial, Fibonacci in one single program. You can have hundreds of functions. So to understand the program, we will be declaring all the functions in the starting of the C program. We will not be defining. So this statement is said to be function declaration. Declaration का मतलब सिर्फ बताना. हम सिर्फ बता रहे हैं प्रोग्राम को, यूजर को, कंपाइलर को, दैट देयर विल बी अ फंक्शन डेफिनेशन बिलो मेन. देयर विल बी फंक्शन डेफिनेशन बिलो मेन. ओके, so this is the scenario, this is the rule, structure or convention follow whenever you are writing any C program. You need to declare all the functions above main by using this semicolon. This semicolon is very important. If you will not write this, it will create an error. So you need to write prototype of the function. This is function prototype, where you write return type, function name and parenthesis pair. This whole is function prototype. And in program, when we write it as like this, semicolon, where definition is not given, it is terminated, just the name and termination, then this is called function declaration, just to tell the compiler that there will be functions. And if you are having function and you are giving curly braces definition, it means you are putting some data in the function. This is termed as function definition. Okay, this difference must be clear in your mind, that by using semicolon it will be declaration, by using curly braces it will be function definition. And one more thing, as such there is no need to write this declaration every time. इन प्रीवियस मतलब इसी से थोड़ा सा पहले मैंने इस फंक्शनैलिटी को ऊपर लिखा था, तो दैट इज ऑल्सो वैलिड. नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप फंक्शन प्रोटोटाइप ऊपर लिखना चाहते हैं, मतलब डिक्लेरेशन ऊपर लिखना चाहते हैं या नहीं लिखना चाहते. इफ यू डोंट वांट टू राइट दिस, then simply put curly braces pair and write the functionality over here. Okay, it depends on you, but the convention is that you will write the function name, then semicolon, it will be termed as function declaration, and below main you will be writing function definition. And it's not necessary that only in main, क्योंकि हमारे पास और फंक्शंस भी हो सकते हैं जिसमें हम दूसरे फंक्शंस को कॉल करें. सो मेन इज जस्ट अ फंक्शन
in which we have called this function. It is just a function. It could be any other function as well. ऐसा हो सकता है कि मैं कैलकुलेटर फंक्शन बनाऊं और कैलकुलेटर में मैं सम, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और मॉड्यूलर फंक्शन बनाऊं और कैलकुलेटर फंक्शन में मैं उन सब फंक्शन को कॉल करूं. इट्स नॉट नेसेसरी कि हम फंक्शन कॉल मेन में ही करें, बट ऑन इंटरनेट यू विल सी दीज टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स ओनली. Okay, but it should be clear in your mind that function call can be done in any function, for any function, because you can see that printf is also a function and this function call is done in sum. So this statement is called function call. Okay, so you learned 3 terms here: function declaration, function call and function definition. All right, now we will change this program little bit. Before that, it's now function is a self-contained block of statement that perform a coherent task of some kind. It means एक block होता है जो कोई task complete करेगा. Every C program can be thought of as collection of these functions. हर C program के अंदर there will be a collection of functions. Either you will be making this or there will be pre set of defined function that you're calling. Function is a set of instructions to carry out a particular task. Now these set of instructions can be designed by you or previously it can be designed by someone else. Function after its execution returns a single value. Now this point is left because in return type we wrote void. So that void is not important. We need to learn other things also. So इसका क्या मतलब है ये मैं आपको भी बताती हूँ. Generally, the functions are classified into standard functions and user-defined functions. Standard functions are predefined functions like scanf, printf, getch, and clearscreen. These are also called library functions because stdio.h or any header file is also termed as library function. Library. So, if any function belongs to any header file, then that function is termed as library function. और built in function. Built in मतलब पहले से बना हुआ है. There are some more functions: sqrt, absolute, log, sign. These all functions are mathematical functions and are available in header file math.h. We will see one of the example of that library. But most of the application need other functions than those available in the software are known as user defined function. It is just saying जो पहले से library में नहीं है and still you are making, then these functions are said to be user defined functions. These are the advantages. Code reduction in code redundancy. It means you need not to write the code again and again. That can be reduced just to make a function, keep it somewhere else and call it again and again. Code reusability है. If there is add function or factorial function already available, you need not to rewrite it. Better readability. अगर हम बहुत 1000 लाइन का प्रोग्राम बना देंगे, we need to read 1 line, 2 line, 2nd line, 3rd line, 4th line. Better readability, if you'll keep all prototypes at above, then user or reader of the code may get that there are 5 functions in this program. There are 100 functions in this program, and by the name of that function, one can understand that what is the meaning or what the function will be doing. Information hiding is very important. You do not know that if you cannot access the function inside and you are only just calling it कि add कॉल कर दो, तो add के अंदर क्या फंक्शनैलिटी है उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है. हमें सिर्फ add को कॉल करना है. तो इंफॉर्मेशन कैन बी हिडन इन फंक्शंस. डीबगिंग का मतलब ये होता है कि अगर प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम है तो हमें वो चेक करना होता है कि कहाँ प्रॉब्लम है. तो डीबगिंग थोड़ी इम्प्रूव हो जाती है. टेस्टिंग, मेंटेनेबिलिटी इजी हो जाती है. टेस्टिंग का मतलब रेंज ऑफ इनपुट्स
किस पर वो प्रोग्राम सही चलेगा। इट मीन्स वी आर जैसे हम 101 पर आउटपुट रॉन्ग आ रहा है और 100 तक सही आ रहा है, तो ये मैनुअली चेक कैसे होगा, मतलब मैनुअली ऑटोमेटिकली इट कैन बी चेक बाय यूजिंग टेस्टिंग। मेंटेनेबिलिटी, जब प्रोडक्ट कोई रिलीज हो जाता है तो उसके बाद मेंटेनेंस होती है, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे कोड में सही किया जाता है, देन दैट इज मेंटेनेबिलिटी। फंक्शन इंटरेक्ट विद ईच अदर टू अकॉम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। ये सारे फंक्शन आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जैसे हम मेन में सम को कॉल कर रहे हैं, दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया बेस्ड अपॉन हु डेवलप्स इट, बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट अ फंक्शन एक्सेप्ट। नाउ here one more word is there, number of arguments. So we will see that what is this return type, what is this argument. Now I have told you this, that how to write a user defined function. Okay, I have told you this also. These statements are just telling that how to write a function. I have already taken 10 minutes on that. Okay, now words which we just read, that type of return type and the arguments. Okay, now we need to change our program a bit. Now I told you that this return type is actually the data type, and data type, if you don't want to write any data type, then you are writing void. But what if I want to write any data type? One point. Second, what is this parenthesis is for? ये parenthesis क्यों है? अगर ये empty है तो क्या यूज है इनका? So adding one thing in this, that in the parenthesis pair we are ought to write arguments. We are ought to write arguments. It means we are writing something inside this parenthesis which is termed as arguments. Okay, तो इसमें हम ऐसा क्या लिखें जिसे हम arguments कहते हैं? Now in this parenthesis pair we can write data type declaration, variable declaration, and these are termed as input to the function. अगर मैं यहाँ फंक्शन कॉल से दो नंबर इनपुट देना चाहती हूँ कि आप सम 32 और 23 का ही करिए, इट मीन्स मेन पर डिपेंड करता है कि इनपुट क्या जाएंगे, so that input can be given in this pair of parentheses and these are termed as arguments. Okay, so if there is a need to get input from the main, then we need to write them here कि कितने input user से लेने हैं. So if you take two integer type of inputs, then we will be writing it here. Okay, so these are arguments, and in function declaration if you are writing arguments, these are termed as formal arguments. Okay, spelling is wrong. If you are writing arguments in function declaration, then it is termed as formal arguments. Now the count of these declaration is important. अगर यहाँ पे ये दो हैं तो I'll copy it, copy, paste. So this is the prototype of the function. This prototype must be same as it is, एकदम ditto होना चाहिए to this function definition data type. अगर आप कोई फंक्शन बना रहे हैं, उसका कोई डेफिनेशन दे रहे हैं, तो whatever declaration prototype is there, वही सेम आपका डेफिनेशन में होना चाहिए. देयर मस्ट बी नो चेंज. अगर कोई चेंज आप करोगे, जैसे आपने ऊपर इंट लिखा है, यहाँ पे आप फ्लोट लिख गए, तो दीज बोथ विल बी डिफरेंट. इट्स नॉट अलाउड. So these will be different. Okay, I'll
run this program, see the change, control F9. There are 4 errors now. Okay, so first of all it is saying that there are too few parameters in the call to sum. It is saying these are okay, I'll tell what is parameter also. That too few parameters, there is nothing over this. The word argument is here. The argument word is used for this place, but in function call these are also called parameters. It means arguments and parameters are interchangeably used. Okay, for arguments you can say parameters, and for parameters you can say arguments. So the error was saying that too few parameters. It means जो arguments आपको pass करने थे वो कम है, उसको sum को 2 चाहिए and you are passing 0. Okay, so there will be type mismatch error also. Type mismatch क्यों कह रहा है? क्योंकि ऊपर का जो sum है it is int और जो नीचे का sum है that is int float. So it is a type mismatch. Now it is saying multiple declaration of A because we have declared A also here. यहाँ पे भी कर दिया और यहाँ पे भी कर दिया. So it's not valid. Why it is not valid? I will tell you. Okay, now we are into this. Starting from here, that we have created a function sum in which there are 2 arguments. These are termed as formal arguments when we are writing function declaration or definition. Now ये जो बॉडी है ये एक बॉडी है, ठीक है, इट्स वन बॉडी. तो देयर इज नो नीड कि आप एक ए को यहाँ पे भी डिफाइन करें. अगर आप इस ए को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं तो इस टेक्स्ट में, इस ब्लॉक में A is already defined and redefining a variable is not allowed. आप A को या इन वेरिएबल्स को दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है. So A and B variables cannot be again declared. अगर आपको दोबारा करने भी हैं तो आप इन वेरिएबल्स का नाम बदल सकते हैं. Then there will be no problem. There is one error, too few parameters for sum because I have not corrected that yet. But जो यहाँ पे error आया था वो हमारा ठीक हो गया क्योंकि एक तो मैंने यहाँ पे float की जगह int लिख दिया and we have changed the variable name from A, B to C, D. Okay, so you can take it like that. This is one pocket and in one pocket if there is one declaration already done, that variable cannot be redeclared again. Okay, so if you want to declare some variable, the variable name must be different. Now I am removing this. अभी मैं क्या चाहती हूँ कि मैं यूजर से वैल्यूज इनपुट लूँ और वो वैल्यूज मेरे सम हो, ठीक है. आई एम चेंजिंग माय प्रोग्राम अ बिट. Okay, I have declared 2 variables, enter 2 variables, I have scanf these 2 variables. Now we will pass these variables in this sum. Okay, now there could be a question in your mind. अभी तो error आया था जब हमने A और B को declare किया था और हमने फिर से इसे declare कर दिया. तो if you will see there will be no error. 23 and 23 is passed and that is summed and the output is 46. So it means your program is running well. 2 inputs are given from the user and the addition is generated by using this formula. Now I have to remove this. I am putting it as comment. तो अभी मेरे प्रोग्राम में बेसिकली मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ. This is, if this is one pocket, a function is a different pocket.
this function is different pocket. A is defined here. This A has no relationship with this A. Okay, क्योंकि ये दोनों different pocket में है. बट अगर आप इसी पॉकेट में दोबारा A को डिफाइन करेंगे then that is the problem. Okay, so this A is totally different from this A. इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है. You can write A1, B1. Now these are different, and you can pass these variables A1, B1. Now when we are writing this A1 will be having some value that will be given to this. ये A1 value इस A को मिल जाएगी. तो if the value was 23, 23 will be the value of A here. If this B1 is 23, then that 23 will be provided to this B. Now in this function we have declared a variable res that is adding the values of A and B. तो इन दोनों का वैल्यू क्या है? जो इन दोनों से आया है. और इन दोनों से कौन सा वैल्यू आया है? जो यूजर ने इनपुट दिया है. ओके, एंड these two values are then added and printed. ओके, इस प्रोग्राम में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए. Then I will change it. हेलो. ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा जब तक मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ. ओके, वन मोर थिंग that we wrote a term formal arguments. The parameters here, these are, which are passed, it also has a term that is actual parameters or actual arguments. Parameters and arguments are words that can be used interchangeably. दोनों एक ही मतलब है. फंक्शन के पेरेंथेसिस में जो चीज हम लिखते हैं these are arguments. If we are writing arguments in function declaration or definition, then these are termed as formal arguments. If we are writing parameters in function call, then these arguments are called actual arguments. Actual arguments क्यों कहते हैं? क्योंकि actual value हम यहाँ पे पास करते हैं. जो एक्चुअल वैल्यू होगी तो A1 और B1 की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे पास होगी. तो आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम अगेन. 100 100. So these 100 will be the values of A1 and B1. These will be passed to A and B, and that res is equal to A plus B will be adding this 100 plus 100 and the output will be 200. Okay, so next, now I don't want void to be the return type. अभी तक हम ये कह रहे थे that in the place of return type we can write a data type. Void is also a data type, but void is the type of data type which tells that यहाँ कुछ नहीं है. It is nothing. It is void. It is खाली. Okay. Now if I want some data type, so what I can assuming that I'm letting कि मैं integer type का return type लेकर आऊँ. तो जो ये वाले arguments होते हैं they act as inputs from the main function. The values were like input from the main function. A1 और B1 फंक्शन के पास वैल्यू लेके जा रहे थे तो these were acting like inputs. Now this will act like output. मतलब ये जो रिटर्न टाइप है ये इस सम से कोई वैल्यू लेके जाएगा बाहर जहां पर भी इसे बुलाया गया होगा, और ये जो वैल्यू लेके जाएगा इसका डेटा टाइप इंटीजर टाइप होगा. ओके, तो अब हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और चेंज करेंगे. Now the prototype must be same, so this void has to be converted in int. Okay,
Now, this int is a return type of sum. This int is the return type of sum. So it means it states that there must be a return statement. There must be a return statement at the end of the function, and this return statement will return something. ठीक है, ये रिटर्न करेगा कुछ, बट ये जो कुछ रिटर्न करेगा इसका डेटा टाइप, मतलब ये जो कुछ है इसका डेटा टाइप मस्ट मैच टू दिस डेटा टाइप। ओके, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ये बहुत सिंपल लग रहा है, बट जब आप कभी दूसरी लैंग्वेजेस करेंगे या सी में ही आगे काम करेंगे तो ये सिंगल पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छे से या तो प्रोग्राम समझा देगी, और अगर आप ये नहीं समझे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई फंक्शन बनाते हैं एंड इट हैज अ रिटर्न टाइप एसोसिएटेड विद इट, तो प्रोग्राम के एंड में, मतलब प्रोग्राम में 10 लाइन हो सकती है, 20 लाइन हो सकती है, इसके ऊपर कितनी भी लाइन्स हो सकती हैं, बट एट द एंड ऑफ दिस function there will be a return statement. This return statement will return something, and that return something का जो data type है that must match to this return type. It means यहाँ पे जो वैल्यू हम रिटर्न कराएंगे इसका डेटा टाइप इंटीजर होना चाहिए। Now to understand what will be the data type of a plus b, a is integer type, b is integer type, and integer plus integer will be integer only. तो हमने रिटर्न में क्या लिखा है, a plus b, जिसका डेटा टाइप int है। इट मीन्स द रिजल्ट ऑफ दिस एडिशन विल बी रिटर्न। अब ये रिटर्न कहाँ जाएगा, जहां पे इसे कॉल किया गया है। ठीक है, इसे यहाँ कॉल किया है। तो अभी अगर हम प्रोग्राम को चलाएं तो मैंने दो वेरिएबल्स को एंटर करा दिया, बट आउटपुट नहीं आया। आउटपुट क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ से आउटपुट गया है बट आपने उसे कहीं प्रिंट नहीं कराया। दिस सम इज हैविंग द वैल्यू ऑफ एडिशन, बट आपने उसे कहीं प्रिंट ही नहीं कराया क्योंकि वो एक वैल्यू है। एंड इफ दैट इज द वैल्यू ऑफ इंटीजर टाइप, it has to be stored in some integer. Let me declare one more, res space। दोबारा समझो इस चीज को, जब हमने इस सम को कॉल किया, we gave the inputs a1 and b1, these are two numerical values, these went to sum, okay, and it evaluated a plus b, it means 100 plus 100 200, and it gave back to this function, और उसे हम यहाँ ले आए। पर जब हमने कॉल किया तो ये प्रिंट नहीं हुआ। प्रिंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो एक वैल्यू थी और वैल्यू इज ऑलवेज स्टोर्ड इन सम रेफरेंस वेरिएबल। तो अब हमने उस रेफरेंस वेरिएबल में इसे स्टोर करा लिया, बट अभी भी मेरा आउटपुट तब तक प्रिंट नहीं होगा जब तक मैं इसे प्रिंट नहीं करा लेती। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इसे प्रिंट कराना है। क्वेश्चन से आप पूछ सकते हैं, मेरा कोड कंप्लीट हो गया। आई विल जस्ट रन दिस। F9, control F9, 100 and 100 will be the inputs and the result will be 200. Okay, and before it was not printed because हमने उसे स्टोर कहीं नहीं कराया था। वैल्यू आई थी पर आपने उसे कहीं रखा ही नहीं, तो वो लॉस्ट हो गई। अब आपने उस वैल्यू को कहीं पे रख दिया है और प्रिंट करा दिया है। ओके, now if you are having any question then please ask। सबको समझ आ गया ये? Okay, I am assuming that you all understood this concept. Okay,
वन मोर थिंग, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे वेरिएबल्स हो ही अगर आपका रिटर्न टाइप है. दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबल function declaration that you are having return type and then you are having you're not having arguments. Okay, it is also valid. If you are having any question, then please ask. Please see this program, else I'll move on. So we were doing user defined functions. So we made 3 types of function. Now I'm telling you that मतलब अब यहाँ पे मैं थोड़ा summarize करूँगी कि क्या आपने सीखा है. First of all, you learned to write the prototype. What is prototype? Prototype is how to write the function. What will you write when you declare a function? So first point is you need to write return type, no space, return type. Then you will write function name, whatever function name user want. It totally depends on user. Then you are having parenthesis pair. Okay, then in this you may have arguments. Okay, then you can have arguments. This is the function prototype. Now if you are placing it above main and you are placing semicolon, it means you are not giving any definition, then it is termed as function declaration. Okay, अगर आप इसे मेन के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं देन इट इज टर्म्ड एज फंक्शन डिक्लेरेशन. अगर आप मेन के नीचे डिफाइन कर रहे हैं और इसको डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं then it is termed as function definition and here you will not write semicolon, you will write curly braces pair and in between these curly braces you will write the definition whatever you want. आपको सिर्फ कुछ प्रिंट करना है, आपको सम करना है या आपको कोई बहुत बड़ा मतलब कोड लिखना है, आप सब कुछ लिख सकते हैं. ठीक है, तो there are two things now in function declaration and definition. This argument is termed as please mute yourself. This is termed as formal arguments. Okay, जब हम function declaration और definition लिखते हैं. Then third आता है function call. Third है हमारा function call, जब हम function को call करते हैं. Now जरूरी नहीं कि ये मेन में हो, इट कैन बी इन एनी अदर फंक्शन एज वेल. ओके, इन फंक्शन कॉल हमें क्या लिखना होता है? एक तो फंक्शन का नेम, पेरेंथेसिस पेयर एंड हियर वी विल राइट द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स. One more thing, the order of formal parameters, formal arguments will be same as actual arguments. ठीक है, इसका मतलब ये है कि प्लीज म्यूट योरसेल्फ. अगर यहाँ पे मैंने फ्लोट लिखा है और यहाँ पे मैंने फ्लोट लिखा है तो जो वैल्यू यहाँ पे जाएगी that will be floating point value first. Okay, so the order of this and this must be same. Okay, पहले फ्लोट है तो पहले फ्लोट, पहले कैरेक्टर है फिर इंट है तो कैरेक्टर इंट. ऑर्डर चेंज नहीं करना है. अगर आप ऑर्डर चेंज करोगे तो कंपाइलर विल गेट कंफ्यूज्ड और कंपाइलर को कंफ्यूजन होगा तो या तो वो एरर देगा या फिर वो आउटपुट आपका रॉन्ग देगा. ओके, तो देयर कुड बी टू केसेस. अगर आप ऑर्डर सेम नहीं रखते हैं तो देयर कुड बी एरर
or there could be some wrong output. Okay, तो हमने अभी ये 3-4 चीजें देखी फंक्शन के अंदर. अगर आपको कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं अब थोड़ा और आगे बढ़ रही हूँ. अब हमारा जो फंक्शन है उसका प्रोटोटाइप ये होता है, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्ग्यूमेंट. हमारा जो फंक्शन है ये 4 तरीके से लिखा जा सकता है. 4 तरीके से कैसे? एक में अगर आपको याद हो एक टेबल, जब भी 2 तरह के इनपुट होते हैं तो इसमें 2 तरह के इनपुट हैं. तो हमारे पास 2 तरह के इनपुट हैं. वन इज रिटर्न टाइप and one is argument. Okay, so whenever there are 2 types of argument there could be 4 possible ways. 4 possible ways क्या होते हैं? 0 0 1 1 0 1 0 1. ठीक है, 2 तरह के इनपुट्स हैं. there could be 4 possible ways. तो इसी से ही हम अपने 4 केसेस बनाएंगे. होपफुली ये सबको आता है, हमने पहले भी किया था. इसके अंदर 0 का मतलब है नो रिटर्न टाइप, मतलब पहला केस विल बी नो रिटर्न टाइप नो आर्ग्यूमेंट. सेकंड केस विल बी नो रिटर्न टाइप विद आर्ग्यूमेंट बिकॉज इट्स 1. विद रिटर्न टाइप विदाउट आर्ग्यूमेंट. विद रिटर्न टाइप विद आर्ग्यूमेंट. समझ में आया आपको? मैं लिख के दिखाती हूँ आपको. विद रिटर्न टाइप without return type without argument. सेकंड था without return type but with argument. What is your with return type and without argument, and the last one is with return type with आर्ग्यूमेंट. तो हम ये 4 तरीके से अपने फंक्शन को लिख सकते हैं. अब हम इनका एग्जांपल देखते हैं. whenever we are saying without return type without argument, तो without return type का मतलब always is void, nothing else. then you are having function name and in bracket without argument means there is 0 argument. Okay, or you can write explicitly void. when you are writing void in parenthesis, it means you are explicitly telling the compiler that there is 0 argument in this function, explicitly telling. And if you are not writing, then it is implicit understanding of compiler that there is 0 argument. Okay, now in next the example return type, it is without, I guess. विदाउट रिटर्न टाइप का मतलब हमेशा वॉइड है. फंक्शन नेम आपका सेम रहेगा. विद आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है कि यहाँ पे या तो जैसे कोई भी डेटा टाइप्स हो सकते हैं, इंट हो सकते हैं, कैरेक्टर हो सकते हैं, फ्लोट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. तो इसमें आपके पास आर्ग्यूमेंट्स होंगे. नाउ नेक्स्ट है आपका विद रिटर्न टाइप विदाउट आर्ग्यूमेंट. विद रिटर्न टाइप का मतलब है आपके पास यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप हो सकता है. विदाउट आर्ग्यूमेंट का मतलब ऑब्वियसली यही है कि योर पैरेंथेसिस आर एम्प्टी. नेक्स्ट विद रिटर्न टाइप का मतलब है यू विल बी हैविंग एनी डेटा टाइप ओवर हियर. एंड विद आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है यहाँ पे आपके पास कोई भी डेटा टाइप इन एनी ऑर्डर देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू आर हैविंग. ओके, और जैसा आपका ये वाला फंक्शन टाइप होगा उसी टाइप का आपकी फंक्शन कॉल होगी. ठीक है, ये फंक्शन सिंपली एफ नेम पेरेंथेसिस से कॉल हो सकता है.
इस फंक्शन को कॉल करने के लिए एफ नेम और यहाँ पे इसके मैचिंग वैल्यूज पास कर दीजिए तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। टू कॉल दिस यू मस्ट हैव अ प्रिंटफ स्टेटमेंट, या फिर आप इसे किसी वेरिएबल में स्टोर कराइए तभी आप इसे यूज कर सकते हैं। सिमिलरली here pass the matching arguments and store the value in the matching data type. Okay, we learned a lot about functions. Still, if you are having any problem, you can ask. Else, I'll move on with the topics. जैसे एक example we will take of if else, one for switch, and then we will study for while and do while. So I'm changing my program. Let's one question. Let's take one input from the user and check if it is 0, greater than 0 और smaller than 0. ठीक है, if से हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें we will check if input is positive, negative और 0. Have to check if number is positive, नेगेटिव और 0. ठीक है, अब हमें ये चेक करना है। यही सेम क्वेश्चन हम स्विच से भी करेंगे। ठीक है, तो लेट मी चेंज। हम इसका नाम चेक रख लेते हैं। रिटर्न टाइप अगर हम चाहें तो हम रिजल्ट को इंट में स्टोर करा सकते हैं कि जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसे स्टोर करा ले। अदरवाइज हम इसे वॉइड भी रख सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम अपना फंक्शन का प्रोटोटाइप कैसा बनाना चाहते हैं। अच्छा, अब हमें एक नंबर लेना है यूजर से। अगर आप चाहें तो वो नंबर हम मेन से लेके जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो उस नंबर को चेक फंक्शन में ही इनपुट लेने के लिए कह सकते हैं। तो व्हाट वी आर डूइंग, हम A1 एक नंबर ले रहे हैं और उसे हम यूजर से इनपुट करा रहे हैं। आई हैव डिक्रीज्ड, मैंने अब एक नंबर लिया है और उसे मैं चेक करा रही हूँ। फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन कॉल होगा चेक के नाम से। अगर हमें कोई वैल्यू मेन से लेकर आनी है या फंक्शन कॉल पे लानी है तो उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा है यहाँ पर। ठीक है, मैंने उसे डिक्लेयर किया यहाँ पे और मैंने उसका नाम यहाँ पे लिख दिया। तो जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें वो वैल्यू पास करनी होगी जिसको हमें चेक करना है। तो A1 हम यूजर से ले रहे हैं, उस A1 को हम पास करेंगे फंक्शन पे और चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर हमें इस प्रिंटफ की जरूरत पड़ेगी तो हम इसे लिखेंगे। टिल देन मैं इसे कमेंट कर रही हूँ। ठीक है, अब हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं। द नंबर इफ इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव हमें क्या करना होगा, हमें चेक करना होगा इफ a इज ग्रेटर देन 0। अगर ये नंबर 0 से बड़ा है तो हम लिखवाएंगे दैट द नंबर इज पॉजिटिव। ओके, अब हमें है कि ये नंबर a से बड़ा नहीं है तो कहीं ये a से छोटा तो नहीं है। तो अगर if false होगा तो वो else में आएगा। बट if in this else हमें दोबारा एक कंडीशन और चेक करनी है कि फिर क्या ये 0 से छोटा है। तो else if मतलब else के बाद एक और कंडीशन चेक कर रहे हैं तो ये हो गया else if। तो क्या ये a छोटा है 0 से? अगर ये छोटा है तो हम दोबारा लिखवाएंगे that the number is negative. ओके, अगर वो नंबर 0 से बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है तो वो क्या होगा, we need not to check the equality
टू 0, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नंबर अगर वो है दैट देन द नंबर इज 0, वो पक्का 0 ही होगा, वो नेगेटिव भी नहीं है पॉजिटिव भी नहीं है, देन द नंबर विल बी 0। ठीक है, तो ये हमने इफ एल्स किया। अब मैं आपको ये बना के क्यों दिखा रही हूँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ दैट इन फंक्शन जो फंक्शनैलिटी आपको देनी है आप वो फंक्शनैलिटी दीजिए। अब इसके अंदर मैंने एक चीज करी है, मैंने यहाँ पे सिर्फ इंट लिखा है, तो इट इज जस्ट टू टेल यू कि जब आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हो तो आप रेफरेंस नेम दो। Ma'am, you are on mute. मैम आवाज नहीं आ रही है। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो हेलो हेलो, आ गई आवाज? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो आई वाज टेलिंग यू कि जब हम फंक्शन लिखते हैं तब जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे रेफरेंस नेम दें, इट्स नॉट नेसेसरी। ओके, मतलब प्रोग्राम को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ पे वेरिएबल दो या मत दो, या फिर आप यहाँ पे ये जो वेरिएबल नेम ले रहे हो इसको इस रेफरेंस नेम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये वाले नाम से इसका कोई मतलब है ही नहीं। तो अगर आप यहाँ लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो इट डज नॉट मैटर। तो लेट्स रन दिस प्रोग्राम ऑल्ट F9। अभी मैंने पॉजिटिव वैल्यू दिया था तो पॉजिटिव आउटपुट दिखाया था, अब मैं -3 ले रही हूँ, then the number is negative, control F9, I am entering 0 and then the number is 0. This is the simple function program in which we have checked if the number is positive, negative or 0. इस प्रोग्राम में किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके, नहीं है। तो अब मैं इस प्रोग्राम को चेंज कर रही हूँ और यही प्रोग्राम मैं बनाने वाली हूँ स्विच से। ठीक है, तो यूजिंग स्विच वी विल चेक इफ द नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ठीक है, तो अब हम ये कैसे करेंगे, इसके अंदर कुछ नया होगा, वी विल सी। वैल्यू ए वैल्यू है हमारे पास, स्विच हम इसमें कंडीशन देंगे दैट ए इज ग्रेटर देन 0। तो अगर a इज ग्रेटर देन 0 तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या होगा? अगर मेरी वैल्यू मान लो 2 है तो क्या 2 0 से बड़ा है? आंसर हाँ। करो कोई। यस। इट इज ट्रू। ट्रू का मतलब सी लैंग्वेज में 1 होता है। ठीक है, तो यस। इट मीन्स अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम लिख सकते हैं केस 1, क्योंकि जब वो ट्रू होगा तो वो सी लैंग्वेज में 1 होगा। तो इफ 2 इज ग्रेटर देन 0 इट विल रिजल्ट 1। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो इट विल बी 0। ये चीज समझ में आई सबको? अगर मैं Yes. वैल्यू लूंगी -2 तो क्या -2 0 से बड़ा है? नो, इट इज फॉल्स। इफ इट इज फॉल्स इट मीन्स द न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी 0। तो मैंने उन दोनों केसेस को यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो अगर मेरा केस 1 है देन आई कैन राइट नंबर इज पॉजिटिव। मेरा केस फॉल्स है, फॉल्स, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मेरा केस फॉल्स है तो या तो वो नंबर 0 होगा या फिर वो नेगेटिव होगा। तो कितने केसेस बन गए इसी केस में? फॉल्स वाले केस में देयर विल बी 2 केसेस। अब या तो a जो है वो 0 हो सकता है या वो 0 से छोटा हो सकता है, मतलब वो नंबर नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो देयर आर 2 केसेस। इफ देयर आर 2 केसेस मैं इस स्विच में एक और स्विच लगा सकती हूँ।
यही हम करेंगे. वी विल प्लेस वन मोर स्विच ओवर हेयर एंड इन दिस स्विच वी विल चेक इफ दिस a, या तो हम ये कंडीशन लगा लें कि a इज इक्वल टू 0 है, तो हम ये प्रिंट करा लेते हैं. अगर a की वैल्यू 0 है तो दिस विल गिव द रिजल्ट ट्रू. ट्रू होगा तो मैं लिख लेती हूँ केस 1 में printf the number is 0. और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई देन वो नंबर पॉजिटिव भी नहीं है, 0 भी नहीं है, तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट द नंबर इज नेगेटिव. नेगेटिव. ठीक है, ये स्विच केस आपको समझ में आया? आप इसे प्लीज एक बार और देख लो. हमने क्या किया, एक नंबर लिया, उसे चेक किया कि क्या वो 0 से बड़ा है. अगर वो 0 से बड़ा है तो इट विल बी ट्रू. ट्रू का मतलब है 1, तो हमने इसे पॉजिटिव प्रिंट करा दिया. अगर वो फॉल्स है, देयर कुड बी टू केसेस. दो केसेस हो सकते हैं, या तो वो 0 होगा या वो नेगेटिव होगा. तो मैंने क्या किया, मैंने एक और स्विच लगाया क्योंकि मेरे पास और केसेस थे. तो मैंने उसमें एक कंडीशन लगा दी कि अगर ये 0 से बड़ा है, 0 है तो ये ट्रू होगा. तो ट्रू में मैंने लिखवा दिया कि नंबर इज पॉजिटिव, और एल्स नहीं, मैंने फॉल्स में लिखवा दिया कि ये नंबर नेगेटिव है. ठीक है, तो दिस इज नेस्टेड स्विच. तो जब भी हम किसी चीज में किसी और चीज को लिखते हैं देन दैट इज टर्म्ड एज नेस्टिंग. मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख देती हूँ जिससे आपको समझ आए कि मैं क्या बोल रही हूँ. नेस्टेड कहते हैं, तो ये नेस्टेड स्विच का केस है. ठीक है, तो ऑल्ट F9, कंट्रोल F9. ये 2 वेरिएबल नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही वेरिएबल देना है. मैंने इसे चेंज नहीं किया, तो आई एम राइटिंग नेगेटिव वैल्यू -4 एंड द नंबर इज नेगेटिव. ओके, समझ आया आप सबको? आप F7 से इसका फ्लो चेक कर सकते हो. void main will be the first line, clear screen हुआ, एंटर टू वेरिएबल लिखा इसने, scanf हुआ, scanf करवाई वैल्यू, मैंने लिया 0, एंटर. F7 से ये सीधा फंक्शन कॉल पे जाएगा. ठीक है, चेक फंक्शन कॉल पे गया, फिर फंक्शन कॉल पे आया, फिर इसने स्विच के थ्रू ये चेक किया कि क्या a 0 से बड़ा है, पर मेरा वैल्यू 0 है, तो ये फॉल्स हो गया. तो सीधा केस 0 पे आ गया. फिर a की वैल्यू मेरी 0 है क्योंकि मैंने 0 एंटर कराया, तो दिस विल बी ट्रू. ट्रू हुआ तो ये केस 1 पे आ गया. अच्छा, ये मेरी गड़बड़ हो गई, मैंने ब्रेक नहीं लगाया. अगर मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगी तो नंबर इज नेगेटिव विल ऑल्सो बी प्रिंटेड. नंबर इज नेगेटिव इज ऑल्सो प्रिंटेड. दिस इज रॉन्ग, ऐसे नहीं होना चाहिए. तो इसके लिए मुझे यहाँ पर ब्रेक लगाना चाहिए. तो इससे आपको ये भी याद हो गया होगा कि हमें ब्रेक क्यों लगाना होता है. और डिफॉल्ट हम स्विच में क्यों लगाते हैं, जब कोई भी केस मैचिंग ना हो तब हम डिफॉल्ट का यूज करते हैं. ठीक है, तो देयर कुड बी अ केस देयर इज नो मैचिंग केस फॉर द स्विच एक्सप्रेशन. इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, एंड दिस एक्सप्रेशन must result to integer or character only. There is enum also, but enum हम कर नहीं रहे हैं तो इसलिए आई एम नॉट टेकिंग इट्स नेम. तो इसका जो रिजल्टेंट है that must be integer और character. ठीक है, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया. तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने लूप्स की तरफ. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लूप. चीजें हम पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल्स वी हैव डन. मैंने फंक्शन इसलिए पहले लिया है क्योंकि अब जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो अब हम लूप्स के एग्जाम्पल्स भी फंक्शन में कर सकते हैं, तो हमें फिर हमारा लूप्स रह नहीं जाएगा. अदरवाइज आई हैड अ डाउट कि हमारा टॉपिक कुछ रह सकते थे आज, इसलिए मैंने आपको फंक्शन पहले कराया. तो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर लूप्स.
जब भी हमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को मतलब कि कुछ पार्ट ऑफ बॉडी को रिपीट कराना हो बार बार, जैसे मुझे प्रिंटफ प्रिंट कराना है, मतलब हेलो प्रिंट कराना है 1000 टाइम्स, ठीक है, मुझे कोई काम है ऐसा जो बार बार प्रिंट कराना है, तब हम लूप्स का यूज करते हैं। तो लूप्स आर दी स्टेटमेंट्स which are used to repeat any section of code. Okay, to repeat any number of statements we use loops. Okay, there are three types of loops in C. One is do while, second is while, and third is for loop. Okay, there are three types of loops: do while and for loop. ये दोनों do while and while loop are little bit similar. There is one difference which we will see while running the program, and then we are having for loop. Okay, these both are condition based, मतलब इन दोनों में कोई condition होती है, अगर वो condition true है then the body enclosed in these loops are repeated. Okay, and in for loop this is to print the number of statement in a range. It means अगर आपको कुछ 10 बार प्रिंट कराना है, 100 बार प्रिंट कराना है, मतलब तब तक प्रिंट कराना है, तो if you know the count of the number कि आपको इतनी बार इसे रिपीट कराना है, then you will use for loop. Okay, तो ये दोनों आपके कंडीशन बेस्ड होते हैं, ये आपका काउंट बेस्ड हो सकते हैं। ये एक जनरल कंसेप्ट है, बट देयर कुड बी समथिंग एल्स, मतलब इसे भी आप कंडीशन पे चला सकते हो, इसे भी आप रेंज के लिए चला सकते हो, बट द जनरल कंसेप्ट इज do while and while loop will be on condition based and for loop will be of number of times you want to repeat some body. Okay, so these are the three loops. Let's understand do while first. 1 minute 30 seconds, I'll drink a glass of water. Now do and while both are keyword. If these both are keywords, then these will be in small case letter. It means to write do while on compiler we need to have small case do, and then मैं आपको syntax बता रही हूँ इसका क्या होगा, then curly braces pair in which you will enclose the code, and then you will write while, it is also a keyword, then you are having this parenthesis, ये function नहीं है, in this parenthesis you will write condition, किस condition तक ये वाला कोड चलेगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू है, जो कंडीशन हम इधर लिखेंगे, जो स्टेटमेंट इसके बॉडी में एनक्लोज होगा वो रन करता रहेगा। एंड हेयर सेमी कॉलन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डू वाइल। डू वाइल का जो सिंटैक्स है, डू वाइल स्टेटमेंट, इट हैज अ सेमी कॉलन एट द एंड। ओके, ये आपको याद रखना है कि डू वाइल में आपका सेमी कॉलन होता है। So let's move to the compiler, or I'll show you some theory.
जब तक वो ओपन होता है मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। मेरा कंप्यूटर जरा स्लो चलने लग गया है, पता नहीं क्यों। ओके, नाउ अब मैंने थोड़ा प्रोग्राम को बस ये फंक्शन प्रो Ma'am, you are not audible. हेलो, नाउ आई एम ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So now I have designing the program for do while loop. Okay, so let me change the name of the function. I am keeping it as do while. This is not the keyword. Do is different keyword, while is different keyword. So I can keep the name as do while. No space. कीवर्ड डू वाइल। तो अब हम जो एग्जांपल कर रहे हैं वो डू वाइल का कर रहे हैं। So first of all we must know the syntax of do while. So we need to write do, curly braces pair, then we will write while, then in curly parenthesis pair we will write some condition and then semicolon. So let us think कि अगर हमें प्रिंट कराना है 1 to 10 तक का काउंटिंग, ओके, सो डू वाइल की हेल्प से हम प्रिंट करा रहे हैं 1 to 10 तक का काउंटिंग। तो अगर आप देखें, अगर मुझे 1 to 10 तक की काउंटिंग प्रिंट करानी है तो क्या इसमें कोई सिमिलैरिटी आप ढूंढ पा रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हमें कोई लूप बनाना हो तो हमें कोई इनिशियल वैल्यू पता होनी चाहिए। इनिशियल वैल्यू पता होनी चाहिए जब भी हम कोई लूप शुरू करेंगे। तो क्या हमें इस 1 to 3 की काउंटिंग में इनिशियल वैल्यू मिली है? यस, द इनिशियल वैल्यू इज 1। ठीक है, फिर वो n+1 हो जाएगा ना मैम, वो n+1 सक्सीड, वो इंक्रीमेंट होगा n+1 के हिसाब से। यस यस यस। अब जब भी हम लूप पढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले इनिशियल पता होना चाहिए, हमें एंड पता होना चाहिए कि कब तक हमें इसे चलाना है। तो जैसे लेट सपोज हमें 10 तक चलाना है और उसके बाद इन बिटवीन इनिशियल पता चल गया, एंड पता चल गया, इन बिटवीन हमें कितना कितना मूव करना है, कैसे मूव करना है। तो हमें एक कंडीशन, नॉट कंडीशन, हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पता होना चाहिए, या डिक्रीमेंट पता होना चाहिए कि हम इन बिटवीन ऐसा क्या करें कि हम स्लोली स्लोली 10 की तरफ पहुंच जाए। तो अगर मुझे 1 से 2 पर जाना है और 2 से 3 पे जाना है तो हम कोई वो यूनिफॉर्मिटी ढूंढेंगे कि हम अगर ये करें तो ये बहुत यूनिफॉर्म है। मतलब 1 में 1 प्लस कर दूं तो 2 आ रहा है, 2 में 1 प्लस कर दूं तो 3 आ रहा है, 3 में 1 प्लस कर दूं तो 4 आ रहा है। इट मीन्स मैं अगर एक इंक्रीमेंट कर दूं तो मैं 10 तक पहुंच सकती हूँ। ठीक है, तो हमें इनिशियल पता होना चाहिए, एंड पता होना चाहिए, और मुझे इन बिटवीन क्या हम ऐसा ऐड करें या डिक्रीज करें या ऐसा कोई फॉर्मूला लगाएं कि हम नेक्स्ट वैल्यू पे मतलब
सिमिलर वे में पहुंच जाए। अगर ये 2 4 6 हेलो अगर ये 2 4 6 8 होता तो 2 के बाद 4 के लिए मैं +2 करती, 4 के बाद मैं +2 करती और 6 के बाद आई डू +2। तो जो वो +2 है दैट इज यूनिफॉर्मिटी। ओके, तो अब मुझे मेरे प्रोग्राम के अंदर इनिशियल पता चल गया, एंड पता चल गया, 1 to 10 तक की काउंटिंग कर रहे हैं तो +1 पता चल गया। तो अब मैं इस प्रोग्राम को बनाने की कोशिश करूंगी। तो एक वेरिएबल चाहिए जो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसी आई को ऑन दिस आई ओनली मैं 1 से स्टार्ट करके 10 तक इसी आई को ले जाऊं तो मेरा काम थोड़ा इजी हो सकता है, क्योंकि मैं क्यों 10 वेरिएबल्स लूं कि मैं आई ए बी सी डी मतलब 10 वेरिएबल में क्यों लूं। अगर मैं इसी एक पोजीशन पर बढ़ बढ़ के 10 तक चली जाऊं तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या हम इस आई को इंक्रीमेंट कर सकते हैं। इस आई को अगर हम इंक्रीमेंट कर दें तो ऑन द सेम लोकेशन मेरी वैल्यूज इंक्रीमेंट होती रहेंगी। अब ये मैं आपको पेंट पे बताती हूँ कि कैसे होगा, तब तक मैं इसे प्रिंट करने का कोड लिखती हूँ। तो पहले मैंने डू के अंदर मैंने आई को प्रिंट कराया, ठीक है, आई को प्रिंट कराया और फिर मैंने उसी सेम आई को इंक्रीमेंट करा दिया। मतलब जब मैं लिखती हूँ इंट आई इज इक्वल टू 1 तो इट मीन्स देर इज अ लोकेशन जिसका रेफरेंस नेम आई है, 1 इसकी वैल्यू है और इसका कोई लोकेशन होगा। ऑन द वेरी सेम लोकेशन अगर मैं इसी आई की वैल्यू 1 हटा के +1 कर दूं 2 हो जाएगा, 2 हटा के 3 कर दूं 3 हो जाएगा, 3 हटा के 4 कर दूं तो 4 हो जाएगा। तो मैं 10 लोकेशंस यूटिलाइज नहीं कर रही, मैं उसी एक लोकेशन पे उसी वैल्यू को इंक्रीमेंट करती जा रही हूँ। तो उससे प्रीवियस वाली लॉस्ट हो जाएगी, बट उससे मुझे कोई कंसर्न ही नहीं है। मुझे सिर्फ अपना 1 से 10 का प्रिंट करना है, मुझे कोई कंसर्न नहीं है कि मेरी प्रीवियस वैल्यू लॉस्ट हो रही है। प्रिंटेड टू आर विश। तो अब मुझे इसे कहाँ तक चलाना है, जब तक ये मेरा आई 10 से छोटा है, ठीक है, तब तक ये कोड चलेगा, ठीक है। तो आपको कुछ चीजें और देखनी है इसमें। नाउ आई एम सो द आउटपुट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर मुझे तो 10 भी चाहिए था। तो इन केसेस में आप ध्यान रखोगे कि आप इक्वल्स जरूर लगाओगे अगर आपको 10 इंक्लूड करना है तो। एंड ब्यूटिफाई इट तो या तो आप /t यूज कर लीजिए या आप /n यूज कर लीजिए, तो आपको आउटपुट थोड़ा सा ब्यूटिफाइड दिखेगा। नाउ योर आउटपुट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So this was the simple counting in which I initialize the value by 1. तो अच्छा मैं आपको ये वैसे चला के दिखा देती हूँ। F7 मेन कॉल हुआ, उसके बाद क्लियर स्क्रीन डू वाइल मेथड कॉल होगा, डू वाइल मेथड पे आया, आई की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज हुई। देन डू के थ्रू हम printf के अंदर आए, printf से ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर ये वैल्यू इंक्रीज होगी बाय 1। अगर ये कंडीशन ट्रू है इट विल गो बैक, इट विल प्रिंट द इंक्रीमेंटेड वैल्यू, क्योंकि आई प्लस प्लस से वो वैल्यू 2 हो गई होगी। तो अब आई की वैल्यू सिस्टम में 2 है तो वो प्रिंटफ आई से जो आई की करंट वैल्यू उसे रीड करेगा, तो वो 2 है तो ये 2 प्रिंट कर देगा। F7 आई की वैल्यू 3 हो गई। क्या 3 अभी भी 10 से छोटा है? यस वो छोटा है, तो इट विल गो बैक एंड प्रिंट अगेन, प्रिंट हो गया। अब ये वैल्यू 4 हो गई, 4 अभी भी 10 से छोटा है तो ये दोबारा प्रिंट कर देगा। एंड सिमिलरली दिस विल बी रिपीटेड, जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक ये चलता रहेगा। तो जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हुई ये एग्जिट हो गया और एग्जिट ये वापस इधर जाता है,
ठीक है, स्टेटमेंट लिखती हूँ printf आउट ऑफ while। जब ये फिनिश होगा तो इसके बाद ये यहाँ पर आएगा और यहाँ पे आने के बाद ये यहाँ आएगा। मैं लिखवा रही हूँ गॉट बैक। कंट्रोल जो है वो वापस जहाँ पे ये फंक्शन कॉल हुआ होगा उसके बाद आता है, तो ये सब भी समझना जरूरी है। आउट ऑफ डू वाइल प्रिंट हुआ और फिर गॉट बैक है, तो आउट ऑफ डू वाइल हमारा फंक्शन के अंदर ही है। इसके बाद अगर हम स्लैश एन लगा दे तो ये थोड़ा सा ब्यूटीफाई हो जाएगा, इट गॉट बैक है। ठीक है, आपको ये समझ में आया कि कैसे हमारा लूप काम किया। अब हम एक एग्जांपल कर रहे हैं वाइल का, क्योंकि हम फंक्शंस कर रहे हैं, हमें तो कोई चिंता ही नहीं है कि हम अलग अलग प्रोग्राम्स बनाएं। तो मैं इसी करंट प्रोग्राम के अंदर ही वाइल का लूप बना रही हूँ, और अगर मुझे डू वाइल नहीं कॉल करना तो मैं उसके फंक्शन कॉल को सिंपल हटा दूंगी। लेट मी मेक, अब मेरी मर्जी कि मैं प्रोग्राम को मतलब फंक्शन को मेन के ऊपर बनाऊं या नीचे बनाऊं। तो आई एम मेकिंग अ प्रोग्राम वॉइड वाइल चेक, तो मैं ऊपर दे रही हूँ इसका डेफिनेशन। ठीक है, मैं नीचे नहीं दे रही, ये मेरी चॉइस है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इट्स योर चॉइस, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अब हमें वाइल का प्रोग्राम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो द सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब हाउ टू राइट दैट थिंग इन सी, because C is a robust language, you must know the syntax of everything you want to write in your program. So we need to write a while loop. So this is the simple syntax of while. This is the simple syntax of while. आप while लिखते हैं, उसके बाद in parenthesis you will write the condition, and then in curly braces you will write the body which you want to include or you want to repeat by using while. Okay, so again we are printing 1 to 10 and I will change it to 2 4 6 8 later on. तो पहले हम इसे 1 2 3 4 करते हैं। Now अगर मैं यहाँ पे I is equal to 1 लिखती हूँ, आपको ये ध्यान देना है, in that same body you cannot define one variable twice, but ये एक अलग फंक्शन है एंड डू वाइल एक अलग फंक्शन है। इन दो में सेम नेम का वेरिएबल हो सकता है, इट इज अलाउड। ठीक है, नाउ टू डिफाइन अ वेरिएबल लूप यू मस्ट ऑलवेज हैव एन इनिशियल पॉइंट, एंड पॉइंट एंड इन बिटवीन दैट फॉर्मूला जिसके थ्रू आप अपना मोटिव अचीव करें। तो मेरा जो इनिशियल पॉइंट है वो 2 है। मुझे ये लूप कब तक चलाना है, जब तक मेरा i स्मॉलर है और इक्वल है 10 के, और इन बिटवीन मुझे क्या कराना है, मुझे एक तो प्रिंटफ करानी है i की वैल्यू, अगर मुझे i से 10 पे +1 करते हुए जाना है, then I can write I is equal to I plus 1. It is also valid for increment, or you can write I plus plus. तो अब इस प्रोग्राम को हम कॉल करते हैं। मेरी मर्जी है कि मैं डू वाइल को कॉल करूं या नहीं करूं, क्योंकि ये मेरा प्रोग्राम है, इट मीन्स यूजर का प्रोग्राम है। तो मैंने इसको डू वाइल को चेक नहीं कॉल किया। तो लेट्स रन दिस। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 एंड गॉट बैक हेयर। गॉट बैक हेयर मैंने यहाँ मेन में प्रिंट कराया है। नाउ इफ यू वांट्स टू ब्यूटिफाई इट /t एंड वी कैन राइट इन while ऑल्सो। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम दोनों को एक साथ कॉल कराना चाहते हैं, देन आई एम राइटिंग /t हेयर एंड ओके अगर मैं इस इन डू वाइल को लिखूंगी तो ये बार बार इसी में लिखे आएगा। तो ये देखते हैं, मतलब प्रिंटफ स्टेटमेंट नंबर्स के साथ आएगा।
तो अभी मैंने इन वाइल लूप को कॉल किया है तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारा का सारा प्रिंट हो गया। अब अगर मैं इस मेथड को कॉल करना चाहती हूँ तो जैसे मान लो मैं इस printf के बाद कॉल करना चाहती हूँ, इट्स माय विश। तो मैंने इस do while को कॉल किया alt F9 कंट्रोल F9 एंड द आउटपुट इज हियर। इन while जो काउंटिंग है वो प्रिंट हो गई। फिर गॉट बैक हेयर जो लिखा है थर्ड लाइन में वो मेरा मेन में है। देन फिर इन डू वाइल मेरा प्रिंट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और फिर जैसे ही डू वाइल फिनिश हुआ आउट ऑफ डू वाइल इज प्रिंटेड। ओके, होपफुली यू अंडरस्टूड द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम and little concept about do while and while. Now there is one difference between do while and while. do while में क्या होता है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तब भी ये जो बॉडी है ये एटलीस्ट एक बार चलती ही चलती है। इट मीन्स अगर मैं इस कंडीशन को चेंज कर देती हूँ दैट इफ आई इज इक्वल टू 10, तो मैंने क्या किया, मैंने इस डू वाइल के अंदर आई की वैल्यू को चेंज कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने डू से पहले तो printf कराई वैल्यू, फिर उसको इंक्रीमेंट करा दिया। तो आई की वैल्यू 1 थी तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये वैल्यू 2 हो जाएगी। पर क्या 2 और 10 इक्वल है? नो, इट इज फॉल्स। इफ इट इज फॉल्स इट विल गेट आउट ऑफ डू वाइल। तो मेरी ये वाली जो बॉडी है ये तब भी चल रही है जब मेरी ये कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। और चलो लेट्स रन दिस। सी, जो मेरी फोर्थ लाइन है इन डू वाइल 1, मेरा कंडीशन फॉल्स था पर मेरी जो डू वाइल की बॉडी है वो फिर भी चली है एटलीस्ट एक बार। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डू वाइल एंड वाइल कि अगर वाइल का जो बॉडी है, सॉरी वाइल का जो कंडीशन है वो फॉल्स भी हो तो जो बॉडी है डू वाइल का वो एटलीस्ट फॉर वंस रन करता ही करता है। ओके, एंड इन द केस ऑफ वाइल, दिस इज वाइल, अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है, अब मैंने कंडीशन फॉल्स कर दी तो क्या मेरा आई जो वैल्यू 1 है वो 10 के इक्वल है? नो, दिस इज फॉल्स, इट इज वेरी मच फॉल्स। तो अब मेरा ये वाइल के अंदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन ही फॉल्स है। तो लेट्स रन दिस। गॉट बैक हेयर आ गया सीधा। इसने जो वाइल की बॉडी थी, फंक्शन तो कॉल हुआ पर जो वाइल की बॉडी थी वो नहीं चली। क्यों? क्योंकि हमारा कंडीशन फॉल्स था। बट इन द केस ऑफ डू वाइल इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन जो डू वाइल का बॉडी है वो एटलीस्ट एक बार चलता ही चलता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डू वाइल एंड वाइल। एक टर्म बोलते हैं हम वाइल को, इट इज प्री टेस्ट। क्यों? क्योंकि बॉडी चलने से पहले, प्री का मतलब होता है पहले, बॉडी चलने से पहले ये कंडीशन चेक होती है। तो इट इज प्री टेस्ट लूप। एंड इन द केस ऑफ डू वाइल इट इज टेस्ट लूप। पोस्ट टेस्ट क्यों बोलते हैं? एक बार बॉडी चल गई उसके बाद हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, बाद में चेक कर रहे हैं। तो इट डिपेंड्स, पता नहीं वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है बट द बॉडी विल रन। ओके, होपफुली आपको लिटिल बिट समझ आया इसके बारे में। अच्छा, अब हम सीरीज ऑफ इवन प्रिंट कराते हैं। जैसे हमने स्टार्ट किया 2 से और हम इसे चलाएंगे जब तक हमारा आई जो है वो छोटा है 20 से, और हम प्लस कराएंगे इसमें वैल्यू 2। मैंने 2 से स्टार्ट कराया है, इनिशियल वैल्यू 2 है।
20 तक मैं इसे चला रही हूँ और फिर हम प्रिंट एफ करा रहे हैं और आई में 2 इंक्रीमेंट कर रही हूँ, तो मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट है 2468 20 तक। कंट्रोल F9। तो अब जो मेरा आउटपुट प्रिंट हुआ है दैट इज 2468 10 40 12 14 16 18 एंड 20। सो दिस इज समथिंग वी कैन डू। अगर मैं इसमें 3 ऐड करती हूँ तो इन बिटवीन का फॉर्मूला जस्ट मुझे समझना है कि क्या होगा, एंड आई कैन डू दैट थिंग बाय यूजिंग दी while loop, for loop and do while loop. Okay, so let's quickly understand that what is for loop. at least हम आइडिया ले सकते हैं उसका। तो मैं इस मेथड को चेंज कर रही हूँ फॉर में, यहाँ पे इसे मैं कमेंट कर रही हूँ लेटर ऑन, अदरवाइज इट विल क्रिएट माय प्रॉब्लम। मतलब प्रोग्राम मेरा चलेगा नहीं क्योंकि वाइल चेक है नहीं। चलो इसे रन करते हैं। वाइल चेक अब है नहीं मेरे प्रोग्राम में, पर ये इसे कॉल करेगा तो कॉल करके एरर आएगा। तो लेट्स रीड द एरर। अनडिफाइंड सिंबल हिमांशी मैम, हाँ जी सर। one small announcement. Attendance sheet and feedback link is shared in the group chat. Please see and fill it. Thank you, and please continue. Now here we are having one error that undefined symbol while check। क्यों? क्योंकि जो while check फंक्शन है वो मैंने चेंज कर दिया है। ठीक है, चेंज कर दिया तो वो अभी से जानता ही नहीं है। अब जानता नहीं तो हमें इसे कमेंट करना पड़ेगा। तो अब मैंने जो प्रोग्राम बनाया है वो फॉर चेक के लिए बनाया है, क्योंकि अब हम एक सिंपल एग्जांपल करेंगे फॉर लूप का कि फॉर लूप क्या होता है। तो अगर कुछ हमें सी में बनाना सीखना है तो सबसे पहले हमें उसका सिंटैक्स आना चाहिए कि उसको हम कैसे लिखते हैं। फॉर कीवर्ड इज यूज्ड, आफ्टर दैट parenthesis pair and the please mute yourself, and the curly braces pair। okay, and in this we want to write some code। पर हम इस फॉर लूप में ऐसा क्या लिखे कि हमारा स्टेटमेंट रिपीटेटिव हो जाए। ओके, तो हम 1 to 10 काउंट ही प्रिंट करा रहे हैं फिलहाल। इंट आई को मैं डिक्लेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे सबसे पहले इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट लिखनी होती है। ओके, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट लिखनी है। उसके बाद मुझे यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन लिखनी होती है। माइंड सेमीकोलन है क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, तो इनसाइड दिस फॉर इट्स गेटिंग एंडेड, दैट्स व्हाई सेमीकोलन इज हियर। मतलब ये इसी तरह से डिजाइंड है कि इनिशियलाइजेशन के बाद सेमीकोलन आएगा, इट्स नॉट कॉमा, माइंड इट। देन कंडीशन के बाद दोबारा कॉमा आएगा, कंडीशन कुड बी लाइक आई स्मॉलर देन 10, फिर सेमीकोलन आएगा और उसके बाद जो हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे वो आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा फॉर लूप का सिंटेक्स इन विच वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, then condition statement, by after semicolon we are having increment or decrement, or you can say update statement। इसको आप update statement भी बोल सकते हैं कि अपडेट कितना करना है, 2 ऐड करना है, 3 ऐड करना है, 1 ऐड करना है या 1 डिक्रीज करना है। तो अब हम एक काम करते हैं, हम 10 से 1 तक काउंटिंग लिखते हैं, मतलब उल्टी काउंटिंग लिखते हैं। तो अब हमारा इनिशियलाइजेशन पॉइंट क्या हो जाएगा 10, कंडीशन हो जाएगी कब तक चलाना है 1 तक चलाना है, और इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट हो जाएगा कि अगर हम -1 कर दे तो फिर 10 से 9 आ जाएगा, 9 से 8 आ जाएगा, 8 से 7 आ जाएगा। ओके, तो हम डिक्रीमेंट करते जाएंगे। तो लेट्स राइट दी प्रोग्राम कोड फॉर दिस। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन वी विल परफॉर्म इट ऑन आई, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं। तो ऊपर मैं लिख रही हूँ आई इज इक्वल टू 0। इनिशियलाइज करना है 10 से, इट हैज टू बी एंडेड बाय सेमीकोलन।
कब तक चलाना है हमें ये, जब तक i मेरा बड़ा है 1 से। अगर 1 को इंक्लूड करना है तो इक्वल्स टू लगा दो, ठीक है। अगर इक्वल टू नहीं लगाएंगे तो 1 विल नॉट बी इंक्लूडेड। सेमीकोलन इज इम्पोर्टेंट है। और फिर हमें क्या करना है, i में डिक्रीमेंट करना है। कर्ली ब्रेसेस टू राइट दी स्टेटमेंट्स printf परसेंटाइल d स्लैश t लगा देती हूँ मैं टू ब्यूटिफाई इट एंड कॉमा i। यहाँ पे मैं इस printf में कुछ नहीं लिख रही, मैं ऊपर एक अलग printf लिख देती हूँ, printf in for slash n alt F9 ओके। आई गेस मैंने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया अभी, तो अब मैं फंक्शन को कॉल कर लेती हूँ। अगर फंक्शन कॉल ही नहीं होगा तो वो आउटपुट ही नहीं प्रिंट कराएगा। तो अब मैंने फॉर चेक को कॉल किया है, तो अब मेरी जो उल्टी गिनती है, रिवर्स काउंटिंग इज प्रिंटेड फ्रॉम 10 to 1। इन फॉर मैंने फॉर के ऊपर लिखा था, अगर मैं फॉर के अंदर लिखती तो वो जैसे वाइल और डू वाइल में रिपीटेशन हो रही थी वैसे ही रिपीटेशन होता। इफ यू वांट्स टू रिपीट यू कैन राइट इट इन लूप, एंड इफ यू डोंट वांट इट टू रिपीट यू कैन राइट इट ऑन above for loop or below for loop। तो अब ये 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 is the reverse counting that we printed with the help of for loop। okay, so these were the examples जहाँ पे हम सिंपल काउंटिंग को प्रिंट करा रहे थे फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल की हेल्प से, ठीक है। अब हम इन चीज़ों के मतलब बहुत सारे एप्लीकेशंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं कि हम फॉर लूप से मतलब नॉट ओनली विद द हेल्प ऑफ फॉर, हम फैक्टोरियल प्रिंट करा सकते हैं, हम फेबनिकी प्रिंट करा सकते हैं, प्राइम प्रिंट करा सकते हैं, और देयर कुड बी एनी पैटर्न विच कैन बी प्रिंटेड। पैटर्न्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम प्रिंट करा सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ for loop, while loop and do while loop. For is very popular loop as such, then while, and do while is not that popular, but in the some there are cases, there are some cases that do while loop use होता है ज़्यादातर, ठीक है। Let me see the time, it's 11:58। Now okay, I don't think so to continue because इतना सारा दिमाग में जाता नहीं है, आई नो। अब आप मुझे बताइए कि आपको कोई क्वेश्चंस हैं इन चीज़ों से रिलेटेड। अगर आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू करूं तो मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ स्टूडेंट्स, और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। Then tomorrow we will do some of the examples of for, while and do while। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम किसी टॉपिक में है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।